Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shukla and today is 3rd of November 2020, Tuesday. Inspiration of the day is hard work beats talent when talent doesn't work hard. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. RIL shareholders lose rupees 1.2 trillion amid sell-off. The most valuable company in India on Monday has seen nearly 9% plunge into its share value, and it is most since March 23rd, or we can say it is the deepest fall since March 23rd. And why this plunge to happen? What is the reason behind this drop down? The share of Reliance Industry has seen this plunge because of the reported drop into the profit for the quarter ended into the month of September 2020. तो क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, जो हम कह सकते हैं प्रॉफिट या रिवेन्यू के जो रिजल्ट्स आए हैं, जो रिपोर्ट किए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उसमें ड्रॉप रजिस्टर हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने एक बहुत बड़ा प्लंज देखा एंड दैट वाज द बिगेस्ट प्लंज सिंस मार्च 23rd. द स्टॉक प्राइजेस rout wiped approximately $16 billion, that is 1.2 trillion rupees of the firm's market capitalization and eroded the promoter Mukesh Ambani's personal wealth by $6 billion, that is 45,000 crore. And because of this push, or because of this hit, the Mukesh Ambani's ranking on the world richest list fall down to 10th from 6th spot. अगर हम पर शेयर की बात करें तो कंपनी के शेयर कल अप्रॉक्सीमेटली 1876 रुपीज़ पर क्लोज हुआ. दैट वाज द 3-month लो, while its partly paid up share hits a 10% lower limit to end at 1065 रुपीज़. और अगर हम डिसइंटीग्रेट करें Q2 के रिजल्ट्स को, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो Q2 के रिजल्ट्स आए हैं जिसमें प्रॉफिट ड्रॉप रिपोर्ट किया गया है या प्रॉफिट में फॉल रजिस्टर किया गया है, अगर हम उसको थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट करके देखें तो जो टेलीकॉम और रिटेल डिवीजन है RIL का, उसने इनकरेजिंग नंबर्स है, या हमें कह सकते हैं इनकरेजिंग प्रॉफिट रजिस्टर किया है इनटू द Q2. इट मीन्स टेलीकॉम और रिटेल डिवीजन ने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का प्रॉफिट रजिस्टर किया ड्यूरिंग दिस क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22. तो रिजल्ट किसकी वजह से खराब हुए? बेसिकली दिस डिटोरिएटिंग आउटलुक वाज बिकॉज ऑफ द ऑयल एंड गैस वर्टिकल्स, एंड दिस deteriorating outlook of oil and gas vertical has prompted the investors or the analysts to scale back the optimism, and because of that there was a sell off into the Reliance Industries share, and because of this sell off RIL has seen 9% plunged into its share value and lose approximately 1.2 trillion because of this sell off trend. And this is the statistics of RIL that we can easily decipher. जैसा कि एक दिन में कल रिलायंस इंडस्ट्री की कितनी वर्थ और मार्केट कैपिटल इरोड हुआ, और मुकेश अंबानी का कितना वर्थ और मार्केट कैपिटल इरोड हुआ बिकॉज ऑफ द 1 day लॉस इनटू शेयर मार्केट. And because of this erosion, RIL has made a 1,214 point negative contribution to the Sensex, 975 point loss into the past 3 weeks. And apart from the RIL, TCS, Infosys, HCL Technologies and HUL were the few other companies that have actually contributed negative point into the Sensex. Apart from these companies, Kotak Bank, Axis Bank, HDFC, Bharti Airtel and ICICI Bank have shown the positive contribution into the Sensex that we can easily see from these tables. तो फिलहाल के लिए कल का जो ड्रॉप हुआ RIL की शेयर वैल्यूज़ में, उसकी वजह से मुकेश अंबानी को एक बहुत ह्यूज लॉस हुआ और उनकी जो पोजीशन थी 6th पोजीशन इनटू द वर्ल्ड रिचेस्ट कैटेगरी, वो फॉल करके 10th पोजीशन पर आ गई. एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ द रिपोर्टेड लेस प्रॉफिट इनटू द Q2 रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल्स.
अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1. EPFO may get note for investment in alternative investment funds, that is also called as AIF. The central government or the union government is going to bring a very special change into the regulation of EPFO or we can say Employee Provident Fund. बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है और इस चेंज की वजह से बेसिकली जो कैश स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको फंड रेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. तो अगर हम बात करें चाहे EPFO हो चाहे पेंशन फंड्स हो, बेसिकली ये डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जो एम्प्लॉय का फंड होता है और उससे जो रिटर्न आता है उस रिटर्न से एम्प्लॉय को कुछ पोर्शन रिटर्न में दे करके दे अर्न द प्रॉफिट. तो ये EPFO चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो चाहे पेंशन फंड हो, इनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो पेंशन फंड्स हैं ये किन किन इन्वेस्टमेंट वेंचर्स में वेन्यूज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो रिसेंटली सेंटर एक बहुत स्पेशल चेंज लाने जा रही है इन ऑर्डर टू रेगुलेट द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट चेंज विल इनेबल द EPFO टू इन्वेस्ट इनटू द cash staff infrastructure sector through alternative investment funds, that is also called as AIF. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन उठ रहे होंगे स्टूडेंट्स के माइंड में, दैट इज व्हाट इज दिस AIF, एक्चुअली ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है और EPFO अगर इसमें कंट्रीब्यूशन करेगा तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे फंडिंग मिलेगी, कैसे हेल्प मिलेगी. स्टूडेंट्स आपने मेरी न्यूज़ में भी और इवन अदर न्यूज़पेपर्स में भी बहुत बार सुना होगा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में. बहुत बार न्यूज़ आती है कि गवर्नमेंट ने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की स्कीम हाउसिंग के लिए अप्रूव कर दी, ऑल्टरनेटिव फंड की स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अप्रूव कर दी, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को AIF में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया. तो व्हाट इज़ एक्चुअली दिस AIF? अगर हम बहुत फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो Security and Exchange Board of India Alternative Investment Fund Regulation 2012 defined AIF as any privately pooled investment funds, whether it is Indian or foreign sources. So it is any privately pooled investment fund in the form of a trust or a company or a body or a corporate or even a limited liability partnership. अगर बहुत सिंपल टर्म में मैं आपको समझाऊं तो कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, दे कम टुगेदर एंड क्रिएट अ प्राइवेट पूल ऑफ फंड. मतलब बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो साथ में आए, उन्होंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट पैसे का लगा करके एक प्राइवेट पूल क्रिएट किया फंड का. एंड दैट फंड कैन बी यूज टू फिनांस एनी सेक्टर. वो किसी भी सेक्टर को फिनांस कर सकते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो हाउसिंग, मोर स्पेसिफिकली हाउसिंग रिलेटेड या अदर किसी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो. उन प्रोजेक्ट को उस पर्टिकुलर पूल्ड फंड से फिनेंस किया जाता है और उससे जो रिटर्न आता है दे टेक रिटर्न एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. स्टूडेंट रिमेंबर, AIF does not include funds covered under mutual fund regulation, collective investment scheme or any other regulation of the board to regulate the fund management activity. अगर बहुत सिंपल फॉर्म में बोले तो प्राइवेट फंड्स होते हैं that are not actually otherwise covered by any other jurisdiction of the regulatory authority of India or regulatory agency of India. Means ये किसी भी particular regulatory agency के अंडर नहीं आते, they are totally privately pooled funds. ये तो हो गया बहुत सिंपल सा डेफिनेशन कि एक्चुअली AIF होते क्या हैं. 5 इन्वेस्टर्स मिल गए, उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर एक फंड क्रिएट कर दिया, एक पूल फंड क्रिएट कर दिया और उस पूल फंड को लेकर के वो किसी भी सेक्टर को इनवाइट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट फाइनेंस फ्रॉम अस वी विल फाइनेंस यू, वी विल गिव यू द सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न और सर्टेन इंटरेस्ट रेट. And as per SEBI AIF regulation 2012, there are certain categories of AIFs, alternative investment fund की 3 कैटेगरीज होती हैं और कैटेगरी में अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट फंड होता है. अगर हम बात करें कैटेगरी 1 AIF, so these types of AIF or alternative investment funds mainly invest into startups or small and medium enterprises companies or any sector which government consider economically and socially viable. तो इसमें कैटेगरी 1 AIF होते हैं.
या इनको हम बोलते हैं कैटेगरी 1 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो बेसिकली स्टार्टअप्स एमएसएमईज में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद कैटेगरी 2 AIF, these includes alternative investment funds such as private equity fund or the debt fund for which no specific incentive or concession are given by the government or any other regulator. तो कैटेगरी 1 में जो फंड्स आते हैं उसमें गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करती है इन ऑर्डर टू प्रमोट द इकोनॉमिकली एंड सोशली वायबल प्रोजेक्ट, in order to promote the cash starved sectors just like infrastructure. Whereas category 2 में जो alternative investment funds आते हैं they are private equity और debt funds, और इस तरह के फंड्स में गवर्नमेंट किसी भी तरह का इंसेंटिव या कंसेशन प्रोवाइड नहीं करती, ना कि गवर्नमेंट ना ही कोई अदर रेगुलेटर। और कैटेगरी 3 फिर आती है, उसमें कौन से इन्वेस्टमेंट फंड्स आते हैं? बेसिकली कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आर hedge funds or funds which trade with the view to make short term returns, and just like category 2 investments or category 2 AIF, these funds are also not very specific, or they do not get any sort of incentive or concession from the government or any other regulator. तो ये ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, इनको कई बार ओपन एंडेड फंड्स भी, ओपन एंडेड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी बोला जाता है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 फंड्स क्या होते हैं। अगर एग्जांपल बता दो तो बस एग्जांपल बता देते हैं। कैटेगरी 1 जो AIFs होते हैं इसमें वेंचर कैपिटल फंड्स आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स आते हैं। कैटेगरी 2 की अगर हम बात करें तो रियल स्टेट फंड्स आते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स आते हैं, डेट फंड्स आते हैं, and are generally used to take in order to meet day-to-day operational requirement of the company. कैटेगरी 3 में हेज फंड्स आते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड्स, इस तरह के जो फंड्स होते हैं वो आते हैं कैटेगरी 3 और कैटेगरी 3 AIF। और बहुत सिंपल टर्म्स में ऐसे फंड्स जो बेसिकली डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एम्प्लॉय किए जाते हैं, और लिस्टेड और अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स में इनका इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैटेगरी 3 AIF। तो अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। अब गवर्नमेंट ने EPFO को अलाउ कर दिया है कि वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकती हैं। बेसिकली इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में हम सभी जानते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर बट मेनी अदर सेक्टर्स आर एक्चुअली वेरी मच हिट बाय द pandemic or the economic long term. Demand, cash availability, labor shortage, capacity utilization, capital expenditure, all are at stake. Companies are actually not expending, they are not going for capital expenditure. Why? Because they do not have the कैश। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी कैश स्टार्व्ड होने की वजह से होल्ड कर गए हैं, रुक गए हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने EPFO यानी जो एम्प्लॉय से जो उनका प्रोविडेंट फंड का जो फंड पूल कलेक्ट होता है वो EPFO कहीं कहीं इन्वेस्ट करता है, तो EPFO को बोला नाउ यू आर अलाउड टू इन्वेस्ट इनटू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, into those alternative investment for more specifically those are actually investing into infrastructure। तो अगर हम बात करें इन तीनों में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तो कौन से ऐसे फंड्स होते हैं जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं? अगर आपको याद हो तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अलाउ किया था हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए कैटेगरी 2 के AIF को, सो दैट अफोर्डेबल हाउसिंग कैन बी प्रमोटेड। तो बेसिकली कैटेगरी 2 के जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं दे टेंड टू इन्वेस्ट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम ये कह सकते हैं EPFO को अलाउ कर दिया गया है, दे कैन इन्वेस्ट इनटू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो कई सारे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्रिएट हो सकते हैं या जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उनमें EPFO इन्वेस्ट करेगा, जिससे मनी सप्लाई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के पास बढ़ेगी। और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, चाहे वो हाउसिंग हो चाहे वो कोई अदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, वो अब इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से फंड रेज कर सकते हैं। एंड दिस डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज टू चैनलाइज द डोमेस्टिक सेविंग्स, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा है। करेंसी सर्कुलेशन डोमेस्टिक सेविंग्स बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है कि जो अभी डोमेस्टिक सेविंग्स हैं उनको चैनलाइज किया जाए, जो असेट्स हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चैनलाइज किया जाए, स्पेशली इसलिए कि जो हमारी डिपेंडेंसी और इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की डिपेंडेंसी है
फॉरेन इन्वेस्टर्स पर वो रिड्यूस हो सके। फॉरेन इन्वेस्टर बेसिकली चाइनीज फर्म्स जो हैं इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रही हैं उन पर डिपेंडेंसी कम करी जाए, इसलिए ईपीएफओ को अलाउ कर रही है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इससे मल्टीपल बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेंगे। An initial estimate says that domestic assets of about 16 trillion can be channelized into infrastructure if government liberalize the investment guideline for EPFO and other such funds. So for this, central government is in continuation talk with the regulatory bodies and the departments of Ministry of Labour and Employment, Security and Exchange Board of India, Pension Fund Regulatory Development Authority, that is PFRDA, as well as the Insurance Regulatory and Development Authority, that is IRDA. So PFRDA, IFRDA, EPFO, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से भी इन सब से कंटिन्यूअस टॉक में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि क्या इस तरह के प्रोविजंस अदर फंड्स के लिए भी लाए जा सकते हैं, जिससे कि इंडिया में स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर के जो कैश स्टाफ की सिचुएशन जनरेट हुई है उसको ओवरकम किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट इन alternative investment fund that we have discussed. It is also called as new investment vehicle. It's one of the type of new investment vehicle. Alternative investment funds इस समय बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं क्योंकि जो नेट वर्दी हेल्दी और वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं इन्वेस्टर्स हैं, दे एक्चुअली इन्वेस्ट और क्रिएट अ पूल इन टर्म्स ऑफ द हायर रिटर्न बाय लेंडिंग टू द रिस्कियर असेट्स और रिस्कियर प्रोजेक्ट्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6। Firms prefer to CP route to raise cash, shun banks. SHUN, shun stands for to distance और to separate, या हिंदी में बोले अलग होना, दूर हो जाना। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। इंडियन कंपनीज आर increasingly preferring the commercial papers in order to raise the fund for their working capital instead of going to banks for lending. तो जितनी भी कंपनीज हैं, जैसा कि अभी हमने पहले वाली न्यूज़ में डिस्कस किया, कैश स्टाफ या फंड्स की जो स्टाफ या लिक्विडिटी स्टाफ बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इवन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी अवेलेबल नहीं है, तो कंपनीज क्या कर रही हैं, दे आर प्रेफरिंग द loan or debt for meeting out their day-to-day expenses or working capital. As per this news, Indian companies are now preferring the commercial paper CP route in order to raise the fund. मैक्सिमम क्या होता है, कंपनीज जो होती हैं वो बैंक्स के पास जाती हैं, दे टेक द लोन विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट और वो लोन बैंक्स को टाइम टू टाइम वो इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में वापस करती हैं। बट अभी का जो ट्रेंड है उसमें ये आ रहा है कि जितनी भी कंपनीज है जो कि एक्चुअली फंड रेज करना चाहती हैं, कैपिटल स्टार्व्ड हैं, वो कंपनीज कमर्शियल पेपर के थ्रू फंड रेज कर रही हैं रादर देन गोइंग बैंक, एंड दिस इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज द लिक्विडिटी सपोर्टिव मेजर्स अनाउंस्ड बाय आरबीआई एक्सपर्ट्स आर ऑफ ओपिनियन। तो जो शॉर्ट टर्म के जो कमर्शियल पेपर्स हैं जो बेसिकली एक साल से कम के टाइम में मैच्योर हो रहे हैं, उनको वो ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं, कंपनीज उस रूट को ज़्यादा अडॉप्ट कर रही हैं। और अगर हम बैंक्स की बात करें तो हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कोविड-19 के ड्यूरेशन में और इवन पोस्ट कोविड-19 जो बैंक्स की इंक्रीमेंटल लेंडिंग है वो भी फॉल कर रही है, क्रेडिट ग्रोथ रेट फॉल कर रही है। हमने कई बार डिस्कस किया है कि बैंक्स आर एक्चुअली रिस्क अवर्सिव इन दिस कोविड-19 पीरियड। बैंक्स आर नॉट रेडी टू lend into the riskier venture, or even they are not ready to lend at all. The data released by RBI last week showed banks' loan growth to the industry segment was nil into the month of September, but on year basis, bank boosted lending, extending credit mainly to the service sector. हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है इट इज़ अ साइन ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल। अगर कंपनीज कमर्शियल पेपर्स पर जा रही है, इट मीन्स मार्केट में मनी है और कंपनीज उस मनी को यूज़ कर रही हैं फॉर देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट, फॉर देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है इट इज़ अ साइन ऑफ रिवाइवल एज अ टोटल ऑफ 1.94 ट्रिलियन वर्थ ऑफ सीपी वॉज issued into the month of September against 1.0 trillion into the month of August. हालांकि अभी अक्टूबर के मंथ का जो डेटा है वो पब्लिक नहीं हुआ है, बट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कंपनीज ने अप्रॉक्सीमेटली 82,000 करोड़ का जो फंड है वो रेज किया है थ्रू कमर्शियल पेपर्स। और अगर जब ये डेटा आएगा तो ऐसा एक्सपेक्टेशन करी जा रही है दैट द टोटल इशू में सरपास द सितंबर्स
अमाउंट। तो अगर हम जल्दी से समझना चाहें कि एक कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, बेसिकली कॉमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको कंपनीज इशू करती हैं इन ऑर्डर टू रेज द फंड्स, जनरली फॉर अ टाइम पीरियड दैट इज लेस देन 1 ईयर। तो ऐसे कॉरपोरेट्स जिनकी हाई रेटिंग होती है, जो बहुत डाइवर्सिफाइड होते हैं, दे इंजॉय इशूइंग दिस टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थ्रू सीपीज। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, अपनी शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशंस हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, या जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, उसको पूरा करने के लिए कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो अपनी नेटवर्थ बहुत अच्छी है, दे इशू द सीपी और द शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन अनसिक्योर market instrument issued in the form of promissory notes. So CP was introduced in India since 1990s. Generally, CP have a minimum maturity of 7 days and the maximum up to 1 year from the date of issue. And they can be issued in the denomination of 1 lakh or multiple thereof. And if any company keen to raise the fund through CP that need to obtain the credit rating either from CRISIL, ICRA, CARE or Fitch like other credit agencies that may be specified by RBI time to time. And the minimum credit rating shall be A2 as per the SEBI guidelines. तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज ही सीपी इशू कर सकती हैं जिनकी नेट वर्थ अच्छी है, जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है बाई ऑल इंटरनेशनल और द फ्यू इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जिनको आरबीआई नोटिफाई करती रहती है। और जैसा कि नाम से लग रहा है, इसमें कोई भी कोलेट्रल एसोसिएट नहीं होता, दैट इज वाई इट इज़ अ रिस्की वेंचर। रिस्की वेंचर होता है इसीलिए केवल वही कंपनीज इशू करती हैं जिनकी नेट वर्थ या क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई होती है। जनरली सीपीज आर सोल्ड एट अ रेट out of discount or from the face value and carries a higher interest rate other than bonds. तो बॉन्ड से थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट रेट होता है, जो फेस वैल्यू होती है उसके डिस्काउंट वैल्यू पर इशू किए जाते हैं, और जो फेस वैल्यू प्लस इंटरेस्ट रेट होता है वो आगे इन्वेस्टर्स का रिटर्न होता है। Generally, the longer the maturity on a note, the higher the interest rate the issuing company or the institution would have to pay. That is a quite simple sentence. ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लोन लेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर रिस्की इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें कोई कोलेटरल नहीं होता, केवल कंपनी की वर्थ के बेसिस पर इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है सीपी में? बेसिकली इंडिविजुअल, बैंकिंग कंपनीज, कॉरपोरेट बॉडीज, uni-corporate bodies, non-residents Indians, foreign institutional investors, all these types of investors can invest into CPs. And this is the comparative analysis of corporate bond and commercial papers that companies have used to finance their capital requirement or short-term capital requirement. The black bar indicates a corporate bond and the gray bar indicates a commercial papers, and we can see the more commercial papers are issued by companies in comparison to the corporate bonds. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6. Yes Bank plans to sell its entire bad loan book. Yes Bank ने EY को अपॉइंट किया था इन ऑर्डर टू कंसल्ट फॉर द पोर्टफोलियो एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज दिस EY। EY स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो आज का आपका क्वेश्चन ये है कि कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं EI जो यहाँ पर वर्ल्ड यूज हुआ है इस न्यूज़ में, ये EI एक्चुअली क्या है। आप देख लेते हैं न्यूज़। रिसेंटली यस बैंक ने EY को अपॉइंट किया था फॉर कंसल्टेशन प्रोसेस ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें EY ने सजेस्ट किया कंपनी को और यस बैंक को दैट इट शुड गो ऑन द सेल ऑफ व्हाट? सेल ऑफ ऑल नॉन परफॉर्मिंग asset. And on that consultation, Yes Bank is gearing up to sell its non-performing assets worth rupees 32,344 crore to ARCs, जिसके लिए EY ने बहुत सारी ARCs को साउंड ऑफ कर दिया है, या हम कह सकते हैं शॉर्टलिस्ट किया है नंबर ऑफ ARCs को। ARCs स्टैंड्स फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, और इसके बारे में बहुत इलेबोरेट डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं, ये बैंक से, लेंडर से उनका नॉन परफॉर्मिंग असेट्स खरीद लेती हैं और उसकी रिकवरी करती हैं या उसको मार्केट में सेल करके अपना प्रॉफिट
अर्न करती है, इनको बोलते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसको लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सीज हैं। कई सारे जो बैंक्स हैं उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए इस एआरसीज में, हालांकि एआरसीज में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितनी भी एआरसीज हैं दे आर एक्चुअली प्राइवेटली ओन्ड एआरसीज। तो आप देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। येस बैंक इज नाउ गोइंग टू सेल इट्स ऑल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन ऑर्डर टू क्लीन इट्स बुक सो दैट येस बैंक कैन इंक्रीज इट्स लेंडिंग कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि जितना भी असेट है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, बैंक्स के असेट्स क्या होते हैं? किसी भी बैंक का असेट उसका लोन होता है, ठीक है। बैंक की लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक की लायबिलिटीज़ होते हैं। तो अगर बैंक के ऐसे लोन जो कि नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं या उन पर रिटर्न नहीं आ रहा, उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उनको हम बोलते हैं बैड लोन्स या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ऐसे लोन जो कि डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, जिसको लेकर के जो बोरोवर था वो चला गया या वो डिफ़ॉल्ट हो गया या वो नहीं पे कर पा रहा इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट, कुछ भी, तो ऐसे एसेट्स को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या नॉन परफॉर्मिंग लोन। स्ट्रेस एसेट्स, बैड लोन, ये सब एक ही टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यस बैंक का 32,344 करोड़ का एनपीए है जिसको यस बैंक सेल आउट करने जा रहा है, जिससे कि एटलीस्ट कुछ रिकवरी हो। डेफिनेटली 32,344 करोड़ की तो रिकवरी नहीं होगी। इट मे बी द लेस रिकवरी थ्रू असेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज, बट एटलीस्ट जो अमाउंट स्टक अप है इन द फॉर्म ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दैट कैन बी फर्दर यूज टू लेंड। अभी ये 32,000 करोड़ का जो अमाउंट है ये एनपीए में फंसा हुआ है, इसको यस बैंक लेंड नहीं कर सकता, लेंडिंग में यूज नहीं कर सकता। तो अगर ये एआरसीज खरीद लेंगे, कितने अमाउंट में खरीदते हैं, दैट इज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो जो भी मनी आएगा दैट कैन फर्दर बी यूज टू lend or to give the borrowers or the other sector for financing purpose. So yes bank has already made the provision of 24,476 crore. These represent the 76% of its gross NPA. So the sale of this NPA will clean the book of the bank and will help the bank to regain its lost place into the banking industry, which was marred by the scandal involved its फार्मर प्रमोटर दैट इज राणा कपूर। मिस्टर राणा कपूर का तो केस हम सब ने सुना था, जब यस बैंक बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट की कंडीशन में आ गया था। जो विड्रॉल पर थी वो लिमिट लगा दी थी, क्योंकि मिस्टर राणा कपूर ने बैंक का जो फंड था उसको बहुत जगह डाइवर्सिफाइड किया था, डाइवर्ज किया था फॉर देयर सेल्फ बेनिफिट। हालांकि अभी तक EY और यस बैंक की तरफ से इस पर्टिकुलर डिसीजन पर कोई भी कॉमर्शियल या ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, बट एक्सपर्ट्स का ये कहना है एज अ पार्ट ऑफ इट्स क्लीन अप यस बैंक कैन सेल इट्स हाउसिंग फाइनेंस बॉन्ड्स और द म्यूचुअल फंड। जैसा कि हमने लास्ट टाइम में देखा ही था कि यस बैंक ने अपने कुछ बॉन्ड्स को मार्केट में सेल आउट कर दिया था, दैट वाज इशूड बाय ट्रबल्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी DHFL। तो अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ के जो बॉन्ड्स थे वो यस बैंक ने सेकेंडरी मार्केट में सेल आउट कर दिए थे। दैट वाज इशूड बाय दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म DHFL के नाम से जानते हैं। और जब इसने बॉन्ड इशू किया था तो अप्रॉक्सीमेटली 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था यस बैंक ने इनटू दिस बॉन्ड ऑफ DHFL, एंड अप्रॉक्सीमेटली 25% की ही रिकवरी बैंक कर पाया है बाय सेलिंग दीज 5,000 crore bond into the secondary market. And apart from this, banking also looking forward to sell its mutual funds business so that it can actually improve its book. And this is the quantum of gross NPA and net NPA of Yes Bank since financial year 20. और जैसा कि हम देख रहे हैं इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, और कुछ अमाउंट में ही इंक्रीज ही कर रहा है, इट इज़ नॉट डिक्रीजिंग एट ऑल। सो नाउ इट इज़ अ हाई टाइम फॉर यस बैंक टू गो फॉर बुक क्लीनिंग प्रोसेस। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। मैन्युफैक्चरिंग PMI rises to decade high. India's manufacturing may be back on track, rebalancing itself from the COVID-19 impact. The Purchasing Manager Index data released by IHS Market on Monday shows that country's manufacturing PMI has rose to 58.9 into the month of October, and the experts are saying that it is a decade high that achieved by manufacturing PMI, and that increase is basically or driven by the robust sale and the
pace gathered by manufacturing output. और जैसा कि हमने पढ़ा है ऑटोमोबाइल की भी सेल बढ़ी है इस फेस्टिव सीजन की वजह से, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंडिया में बढ़ रही है. जो परचेजिंग मैनेजर्स हैं दे आर एक्चुअली बाइंग द रॉ मटेरियल एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंक्रीज ऑफ 58.9% have been seen in the month of October and that is a very good news for Indian economy. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. पुदुचेरी एक्सेप्ट सेंटर्स जीएसटी कॉम्पनसेशन फॉर्मूला. पुदुचेरी ने फाइनली जो सेंटर का जीएसटी कॉम्पनसेशन फॉर्मूला था उसको एक्सेप्ट कर लिया है. And after this, the center proposes to borrow 1.1 trillion to make the shortfall into the GST collection will start for Puducherry as well. States like Kerala, West Bengal, Punjab, Jharkhand have not yet accepted the proposal given by center government. तो इनके लिए अभी बोरोइंग नहीं होगी. फिलहाल के लिए पुदुचेरी ने एक्सेप्ट कर लिया है सेंटर का option number 1 that was actually accepted by other 21 or 22 states. And as per the current scenario, the Ministry of Finance borrowed and transferred the second installment of rupees 6,000 crore to 16 states and 3 union territories under the special borrowing window. और ये बैक टू बैक बेसिस पर अलग अलग स्टेट्स को डिसबर्स किया जाता रहेगा जैसे जैसे स्टेट्स एग्री करेंगे सेंटर के इस ऑप्शन पर. हालांकि 7 जो डिसेंटिंग स्टेट्स हैं वो अभी भी एग्री नहीं कर रहे गवर्नमेंट के इस बोरोइंग ऑप्शन पर और बोरोइंग अमाउंट पर. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. HDFC's नेट प्रॉफिट फॉल 27% इन Q2 to 2,870 crore beats estimate. So against the expectation, the Housing Development Finance Corporation's net profit dipped to 27.6% into the second quarter of financial year 21. हालांकि जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि all these numbers of HDFC's net profit cannot be compared with the previous year data. Why? Because this time the situation is completely different. However, this large amount of shortfall was not expected. So that's all for today, student. This is the news of the day. Vocabulary of the day is shun. Shun means dur rehna, alag rehna. Cast away and issue are the synonyms. These are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. So student, if you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.